بھٹو کا آخری بیٹا کیسے اپنی بہن کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ 19 اکتوبر 1993 کو محترمہ بینظیر بھٹو دوسری دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ وہ وزیر اعظم تو بن گئیں لیکن ان کی والدہ اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو ان کا دستے بازو بننے کے بجائے ان کے خلاف ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی کی سربراہی چھیننا چاہتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اور مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد کو پھانسی لگتے دیکھا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں میں بہت محبت اور لگاؤ ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی ایک تاریخی اور سیاسی وجہ تھی۔ تاریخی اور سیاسی وجہ اس طرح تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا گیا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد شروع کر دی اور مرتضیٰ بھٹو نے جنرل ضیاء الحق سے انتقام لینے کے لیے الذوالفقار کے نام سے مسلح تحریک بنا لی اور وہ افغانستان چلے گئے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے فار آل، لیکن مرتضیٰ بھٹو اس کو نہیں مانتے تھے اور مرتضیٰ بھٹو پہ پی آئی اے کے طیارے کے اغوا کا کیس تھا۔ انہوں نے 1981 میں پی آئی اے کا طیارہ اغوا کیا تھا۔ یہ مکمل تفصیل ہم آپ کو اسی سیریز کی 10ویں قسط میں بتا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ 2003 میں مرتضیٰ بھٹو کو طیارہ کے اغوا کے کیس سے بری کر دیا گیا تھا۔ پی آئی اے کے طیارے نے پیپلز پارٹی پہ ایک خوفناک اثر ڈالا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے طیارے کے اغوا کو جواز بنا کر پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کو دہشت گرد اور بھارتی راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو محترمہ بینظیر بھٹو کے کمرے سے، ان کے روم سے طیارہ کے اغوا کی دستاویزات بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ الذوالفقار کی ایسی سرگرمیوں کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو الذوالفقار سے اور الذوالفقار کے بانی اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو سے دور رکھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اختلافات دن بدن بڑھ رہے تھے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو نے دوسری دفعہ حکومت سنبھالی تو اس وقت مرتضیٰ بھٹو شام میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے بہن کے وزیر اعظم بنتے ہی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کی سربراہی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو جانتے تھے کہ ان کا پاکستان میں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور نہ ہی آسان کام ہے، کیونکہ وہ طیارہ ہائی جیکنگ کے علاوہ اور بھی بہت سے مقدمات میں پاکستان کو مطلوب تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کی واپسی محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے سیاسی اور جذباتی مسائل پیدا کر سکتی تھی، اس لیے محترمہ بینظیر بھٹو نہیں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو پاکستان میں آئیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ مرتضیٰ بھٹو اگر پاکستان آتے تو ان کو بہت سے خطرات تھے۔ جانی خطرات ہونے کی وجہ سے ان کو بیرونی ممالک کے بڑے بڑے گارنٹرز کی بھی ضرورت تھی اور اس میں ان کا ساتھ دیا شام کے صدر حافظ الاسد نے اور دوسرے تھے یاسر عرفات۔ انہوں دونوں نے ان کی زندگی کی گارنٹی پاکستان سے لی اور ان کا پاکستان جانے کا سفر آسان بنا دیا۔ 3 نومبر 1993 کو مرتضیٰ بھٹو کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہ آیا۔ وہ چکر لگاتا رہا لیکن ایئرپورٹ پہ اترنے کی اجازت نہ دی گئی، لہٰذا وہ طیارہ دوبارہ واپس دبئی چلا گیا۔ پھر وہ دوسرا طیارہ لے کر پاکستان آئے تو دوسری دفعہ وہ طیارہ لینڈ کر گئے لیکن اترتے ہی پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ بھی ان کو اترنے نہیں دیا جا رہا تھا اور انہوں نے پائلٹ کو کہا تھا کہ ان کو پیراشوٹ دے دیں اور وہ طیارہ سے چھلانگ لگا جائیں گے۔ تاہم سول ایویشن کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلی بار طیارہ آیا تو نہیں اترنے دیا گیا
लेकिन दूसरी बार उनको नहीं रोका। पुलिस ने पकड़कर मुर्तजा भुट्टो को जेल में मुंतकिल कर दिया। अब बहन पाकिस्तान की वजीर आजम थी और भाई जेल में था, लेकिन बहन अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो होने जा रहा था, 7 माह की जेल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। वो जेल से दावे करते कि वो पीपल्स पार्टी के हकीकी रहनुमा हैं और हकीकी वारिस हैं, जबकि उनका जवाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बजाय उनके शोहर आसिफ जरदारी देते। वो जुल्फकार अली भुट्टो की एक वसीयत के जरिए बताते कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी सियासी जाननशीन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बनाया है। भुट्टो खानदान के सियासी इख्तलाफात आखिरी हदों को छू रहे थे और अपोजिशन ये सब ड्रामा करार दे रही थी। चौधरी शुजात ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये ड्रामा 3-4 माह चलेगा, उसके बाद मुर्तजा को रिहा कर दिया जाएगा। अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई जेल में थे और मोहतरमा अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन रहती थी, लेकिन सियासी मजबूरियां थीं जिसकी वजह से वो नहीं मिल पाती थीं। आखिरकार बहन की मोहब्बत जीत गई और सियासत हार गई। वो रात की तारीकी में अपने भाई मुर्तजा भुट्टो से मिलने जेल चली गई। अपोजिशन ने इस बात को हाथों हाथ लिया, लेकिन मोहतरमा ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की वजीर आजम नहीं, एक बहन भी हूँ। मुर्तजा भुट्टो सिंध असेंबली के मेंबर भी थे, इसलिए 8 नवंबर को उनको खुसूसी रियायत दी गई ताकि वो असेंबली में जाकर अपना हलफ ले सकें। वो असेंबली में गए और वहां पे जाकर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ बहुत सी बातें की और कहा कि अगर पीपल्स पार्टी टूट गई तो उसकी जिम्मेदार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होंगी, क्योंकि वो खुद को पीपल्स पार्टी का हकीकी वारिस समझते थे। और नुसरत भुट्टो भी मुकम्मल तौर पर अपने बेटे मुर्तजा भुट्टो का साथ दे रही थी और वो भी यही कहती थी। मौलाना ने पूछा, बीवी आप ये तस्बीह पे आप क्या पढ़ती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। तो मौलाना ने कहा कि ये आयतुल कुर्सी तो बहुत लंबी आयत है, आप किस तरह इतना जल्दी जल्दी आप तस्बीह चला रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने आयतुल कुर्सी को मुख्तसर कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। उन्होंने पूछा आपने किस तरह शॉर्ट किया है? कहती है अभी मैं पढ़ती हूँ कुर्सी 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 कुर्सी। गलती आप लोगों की, आधी गलती ख्वातीनों की है। इसलिए जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, ख्वातीनों ने आके हमारे जलसों के सामने कहा न मीर न पीर बेनजीर बेनजीर, तौबा करो, अभी तौबा करो, तौबा करो। मुर्तजा भुट्टो का ज्यादा हक है पीपल्स पार्टी पे। जब ऐसी बातें नुसरत भुट्टो ने करना शुरू की तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खतरा लाक हुआ, क्योंकि नुसरत भुट्टो पीपल्स पार्टी की सरबराह थी। तो उन्होंने अपनी पार्टी की एक मजलिस शूरा बुलाई और पीपल्स पार्टी की सरबराही अपने नाम करने की कोशिश की, लेकिन नुसरत भुट्टो को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मजलिस को मुस्तरद कर दिया और वो वहां पे नहीं आई। नुसरत भुट्टो कहती थी कि उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनवाकर बहुत बड़ी गलती की है। बेहतर था कि वो खुद पाकिस्तान की वजीर आजम बन जाती। 5 जनवरी को जब जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह का दिन था तो नुसरत भुट्टो लाड़काना अपने जुल्फकार अली भुट्टो के मजार पे जाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने उनको रोक दिया। इस दौरान वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ, गोलियां भी चली, शेलिंग भी हुई। शेलिंग और लाठीचार्ज की वजह से 4 कारकुनान जान बहक हो गए और मुतअद्दद जख्मी भी हो गए। 100 से जायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। नुसरत भुट्टो और गनवा भुट्टो जो मुर्तजा भुट्टो की बीवी थी, उन पे शेलिंग की वजह से गशी तारी हो गई और वो गशी के आलम में कहती रही, बेगम जरदारी की गोलियां मुझे अपने शोहर के मजार पे जाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम लेना भी छोड़ दिया था। वो इतनी दुखी थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बेगम आसिफ जरदारी कहा करती थी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो परेशान थी। वो नुसरत भुट्टो को और अपने भाई मुर्तजा भुट्टो को खुली छूट नहीं दे सकती थी।
एक ख्याल जहन में आता है कि ये सरकारी पीपल्स पार्टी वाले कितने बेगैरत हैं। आपके पास सिर्फ मुफाद परस्त लोग बैठे हुए, आपके पास सिर्फ डाकू बैठे हुए, आपके सिर्फ शहीद के कातिल बैठे हुए। बात क्यों नहीं की जाती? साथ साथ में मखदूम खलीक ने भी कहा कि फलाना भी जिया के साथ था, फलाना भी जिया के साथ था, फलाना भी शहीद के कत्ल में मुलव्वस था। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, मगर मैं एक और बात करता हूं, डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया है। ये कातिलों को अगर साथ रखा है तो ये शहीद के खून पे धोखेबाजी की है, शहीद के खून पे गद्दारी की है। जिन्होंने शहीद के कातिलों को अपने साथ बिठाया, शहीद के कातिलों को अपने साथ बिठाया है, और शहीद बेटे को कहते हैं दहशतगर्द है। शहीद के कातिलों को पार्टी में बिठाया हुआ है, शहीद की बेवा को पार्टी से निकाल दिया। जिन्होंने वफादारी शहीद के खून के साथ नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद बेटे शाहनवाज के साथ नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद की बेवा से नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद के घर से नहीं की, मेरे गरीब साथियों, वो आपसे क्या वफादारी। 5 जून 1994 को मुर्तजा भुट्टो जेल से रिहा हुए तो वेलकम वेलकम मुर्तजा वेलकम के नारे लगे। जहां ये नारे लगे वहां पे अलविदा अलविदा बेनजीर अलविदा के नारों से भी इलाका गूंज उठा। मुर्तजा भुट्टो कहते थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो आसिफ जरदारी की तहकीकात करवाएंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां बैठाई जाएंगी। फिर एक दिन मुर्तजा भुट्टो और आसिफ जरदारी आमने सामने आ गए। आसिफ जरदारी के पास उस वक्त गार्ड्स नहीं थे, लिहाजा मुर्तजा भुट्टो ने आसिफ जरदारी की एक मूंछ साफ कर दी, और आसिफ जरदारी मूंछों को इज्जत का मसला करार देते थे। इसका कोई भी ऐनी शाहिद तो मौजूद नहीं, लेकिन मुतअद्दिद बार गनवा भुट्टो ने इसका जिक्र किया है। जब आसिफ जरदारी की मूंछें काटी गईं तो वो उठे, धमकियां देते हुए वहां से चले गए। अलबत्ता आसिफ जरदारी और उस वक्त के DIG कराची शोएब सडल इस बात से इनकार करते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इस एस्पेक्ट को थॉरली देखा था। ये कि जी इनका आपस में कुछ स्कफल हुआ और उसने मूंछ काट दिया और ये ना, ऐसी बात नहीं। इसके कुछ दिन बाद मुर्तजा भुट्टो की पार्टी के एक मुतहरक कारकुन मोहम्मद अली सरारा को कराची की पुलिस ने बम धमाके और राज से तल्लुकात की बना पर गिरफ्तार कर लिया। जब मुर्तजा भुट्टो को इस बात का पता चला तो वो खुद उनको छिड़वाने गए, लेकिन छिड़वाने के बजाय उन्होंने CIA के 2 दफातर पे हमले कर दिए और दावा बोल दिया। जब शोएब सडल को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने मुर्तजा भुट्टो की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वजीर आला सिंध और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको इस बात से रोका कि मुर्तजा भुट्टो की बजाय उसके मसलहा साथियों को गिरफ्तार किया जाए। चुनांचे 20 सितंबर 1994 को पुलिस की एक पार्टी उनके कराची वाले घर 70 क्लिफ्टन के करीब नाका लगाकर बैठ गई, और जब मुर्तजा भुट्टो कहीं से जलसा करके तकरीर करके वापस आ रहे थे तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मुर्तजा भुट्टो के साथियों में और पुलिस में एक तलह कलामी हुई और फिर खामोशी छा गई। रात का वक्त था, अंधेरे में जब खामोशी छाई तो फिर एक गोली चली और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। मुर्तजा भुट्टो के बॉडीगार्ड्स, उसके मसलहा साथी कहते हैं कि पहली गोली पुलिस ने चलाई, जबकि पुलिस कहती है कि पहली गोली मुर्तजा भुट्टो के साथियों ने चलाई थी। फायरिंग आधा घंटा जारी रही। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन जब फायरिंग रुकी तो उस वक्त मुर्तजा भुट्टो को 5 गोलियां लग चुकी थीं, जिनमें से एक गोली उनकी गर्दन के पार हो चुकी थी। शोएब सडल कहते हैं कि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाने का हुक्म दे दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मुर्तजा भुट्टो 55 मिनट तक लावारिस बेयारो मददगार वहीं पड़े रहे और फिर उनको करीबी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पे भी तिब्बी सहूलियात नामुकम्मल थी, नाकाफी थी। 1.5 घंटे बाद भुट्टो की बीवी और बेटी फातिमा अस्पताल पहुंचे तो भुट्टो का डेढ़ 2 घंटे बाद मुर्तजा भुट्टो की बीवी गनवा भुट्टो और बेटी
फातिमा भुट्टो अस्पताल पहुंची तो जुल्फकार अली भुट्टो का आखिरी बेटा आखिरी सांसें ले रहा था। उसके जिस्म से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से नया खून कबूल नहीं कर रहा था और फिर रात के 12 बजे के बाद उसका जिस्म खून की जरूरत से आजाद हो चुका था और भुट्टो का आखिरी बेटा इस दुनिया फानी से कूच कर चुका था। सिर्फ 2 दिन पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुर्तजा भुट्टो की सालगिरह पे उसको फोन किया था और सालगिरह की मुबारकबाद दी थी, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती थी कि ये उनकी आखिरी गुफ्तगू है। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस बात का पता चला तो वो नंगे पांव भागती हुई अस्पताल पहुंची और 21 सितंबर को भुट्टो के खानदान का कब्रिस्तान और बढ़ गया, एक कब्र का और इजाफा कर दिया गया। बहन वजीर आजम थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। सियासी बेबसी ऐसी थी कि वो उनका आखिरी दीदार भी ना कर सकी और उनके जनाजे में आसिफ जरदारी समेत किसी भी वजीर ने शिरकत नहीं की। जनाजे के 2-3 दिन बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी भाभी और भतीजी का गम गल्त करने के लिए वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उनके कारकुनान बड़े मुस्तैद थे और उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गाड़ी पे पथराव किया और वो वापस आ गई। अपनी भाभी और भतीजी का गम गलत न कर सकी। मुर्तजा भुट्टो इस दुनिया से रुखसत तो होगा, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए शहीद कभी नहीं मरते हैं। जब बेगम साहबा सनम और मैं मुर्तजा के मजार पर हाजिरी देने गए तो हम 3 औरतें थी और हमारे सामने 3 कब्रें थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद को फांसी लगते देखा था, दूसरे भाई को फ्रांस में जहर से मरते देखा था, अब तीसरे भाई को जब गोलियों से मरते देखा तो उसके कातिलों का सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, बेसूद रहा। एजेंसियों ने जो रिपोर्ट्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दी थी उनके मुताबिक शूटर जिसकी गोली पहले चली थी वो किसी छत से या किसी दरख्त पे बैठा था और वहां से गोली चलाई गई थी और वो ऐसी तस्वीर भी दिखाते थे कि मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी की छत से गोली आर पार हुई थी, लेकिन जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो गाड़ी देखी तो वहां पे गोली का कोई निशान मौजूद नहीं था। मोहतरमा को दी गई और उसमें ये दिखाया गया जी कि गोली फलां जगह से एंटर हुई है जो लगी है उसको, जबकि वो गोली का निशान उधर गाड़ी पे था ही नहीं, वो कोई टेम्पर्ड किस्म की तस्वीरें थी। तो इस तरह की कुछ चीजें सामने आई थी। खुफिया एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती रहीं, लेकिन गलत रिपोर्टें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को देती रहीं। ये कत्ल आज भी एक मामा है और उस कत्ल में जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग जेलों में कैद हो गए थे, पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में उन सबको बरी कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस कत्ल के साथ सदर फारूक लगारी को भी जोड़ती हैं। वो कहती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सदर फारूक लगारी का भी उनके साथ हाथ था। समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातिलों को तसल्ली दे सकता था, क्योंकि और कोई मुझे निकाल नहीं सकता था। तो कातिलों को तसल्ली फिर कैसे मिलती? आखिर में कातिल कहते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का भाई है, प्राइम मिनिस्टर तहकीकात करेगी, हमें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो कोई था जिसने कहा कि वो फिक्र नहीं करो बेटा, वो नहीं रहेगी, वो चले जाएगी, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। और ऐसे उस वक्त के वजीर दाखिला मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर कहते हैं कि ये ISI की एक प्लानिंग से कत्ल किया गया था। कहता है कि मैं मुर्तजा के कत्ल का पता नहीं था, एजेंसी ने करवाया था। आज भी मैं कहता हूँ उसी रात में बयान दिया था। कौन सी एजेंसी? आप नाम नहीं लेना चाह रहे ना, मैं आपको कहता हूँ ISI। लेकिन मुखालिफिन के मुताबिक ये आसिफ जरदारी ने कत्ल करवाया था, जबकि
कराची के DIG शोएब सडल इसको पुलिस की बेवकूफ़ी करार देते हैं। वो और तरह से होता है कि शायद ये पुलिस वालों से गुफअप हो गया, तो लेकिन बाद में चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होना शुरू हुई उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो गई। बहरहाल अगर ये पुलिस की बेवकूफ़ी थी या नहीं थी, इसके बाद एक और सोची समझी बेवकूफ़ी होने जा रही थी। पाक फौज के एक मेजर जनरल ने एक ब्रिगेडियर समेत 40 साथियों को साथ मिला के पाक फौज पे कब्जा करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि पाकिस्तान पे हकीकी इस्लामी शरीयत नाफिज की जाए और सियासी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। और दूसरी तरफ मालाकंड में एक पुरअज़्म आलमे दीन ने जजिस और अफसरान को यरगमाल बना लिया था और इसके साथ ही एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया था और मुतालबा किया कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून को नाफिज किया जाए, इस्लामी शरीयत नाफिज की जाए और जब तक शरीयत नाफिज नहीं होगी वो ये कब्जा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर बीते शब रोज़ की दिलचस्प कहानी अभी जारी है और इस दिलचस्प कहानी को अगला रंग किसने दिया ये देखने के लिए अगली किस्त देखें। मैं हूं तनवीर अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं सच जानो।